live, so we will go live. यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया एहतेशाम। आई एम मारिया एहतेशाम, occupational therapist, student of occupational therapy first semester from Khyber Medical University, and I'm also a co-founder and director HR of Holistic. आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है एंड सबके लिए बहुत फायदेमंद है। इवन ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे साथ जो आज गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है। आज सबसे पहले तो हम होलिस्टिक की तरफ से आप सबको सॉरी कहते हैं कि हमारे जो होस्ट थे अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं आ सके और वो अटेंड नहीं कर सके सेशन हमारा। तो उनकी जगह मैं यहाँ पर हूँ। मैम नीलम जहरा का सेशन हम आज मिस नहीं करना चाहते थे, तो हमने बोला लाइक कि हर सूरत में हमने ये सेशन अटेंड करना है। तो Thank you फाइनली so वी much. आर हेयर। मैं मैम का थोड़ा बहुत बता देती हूँ, इंट्रो बता देती हूँ जिनको ना पता हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैम को कोई जानता ना हो, बट फिर भी मैं मैम को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैम जो है तो partner at Acute Care Occupational Therapist है, and she is also HLD at Ziauddin University Karachi, and मैम जो है तो member of WHO में COPD डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी है, एंड मोर देन दिस she has 5 years of experience. So मैम आज का टॉपिक मैं बता देती हूँ, बोल देती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग अक्रॉस द लाइफ टाइम। तो मैम क्या आज आप स्टार्ट करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम वेलकम टू होलिस्टिक, एंड हाउ आर यू मैम? Alhamdulillah. Thank you, Maria, for giving me an opportunity to be there with you people, with such young therapists, mashallah. Say, and I am really very blessed that you introduced me in a very good words. And if I थैंक start यू again मैम। with some of the corrections, right? श्योर। Not exactly corrections, just addition into it. It's not like this. I'm the founder for Acute Care Occupational Therapy. Yes, I introduced occupational therapy along with the team, of course, in Karachi, and I do not know exactly how many people are working in acute care at other areas of Pakistan, right? But yes, we do have a पूरा SOPs है हमारे पास जो हमने introduce किया तो बनाए सब, and to the tertiary care hospital where I worked, and it's been 20 years I'm into the profession, initially with the clinics and then now towards academics, research, and of course trying to make our organization strong. When you talk about WHO, yes, I've been nominated by World Federation of Occupational Therapy for this rehabilitation development program for chronic obstructive pulmonary disorder. पाकिस्तान में तो अभी हम इतना काम नहीं कर रहे हैं इसके अंदर एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बट यस हमारे साथ जो पैरेलल प्रोफेशंस हैं दैट इज फिजियोथेरेपी, दे आर वर्किंग टू मच इन इट एंड देयर आर मेनी अदर पीपल हु आर वर्किंग इन इट। तो हम इस एग्जैक्टली। international guidelines बना रहे हैं. That is something which I would like to add on because people need to look into it. There are a lot of scopes in the profession. It's not necessary that everybody of us have to be a clinician. We can be many other things, right? So that is the reason I wanted to have a little brief add on, a little crisp in the introduction so that people can actually think about new ideas. By the way, walaikum salam to everybody, whoever is coming, and I hope I'll be informative to everybody. Regarding the topic health and wellness, it's basically sustainable developmental goal of WHO, right? And we all are working on it. अब अगर हम बात करें तो लोगों को पहले तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ नहीं पता ना. हमारे यहाँ तो कहते हैं बीमार है तो हाँ बीमार है तो हम बीमार हैं, और अगर हम सही हैं तो हम हेल्दी हैं, राइट? बट इट इज नॉट नेसेसरी. एग्जैक्टली। एनीबडी हु इज या हाँ एनीबडी हु इज सिंग एंड इट्स लाइक आप यहाँ बैठो मैं बैठी हूँ, पीछे बैक ऑफ द माइंड हमारे क्या चल रहा है, राइट? तो और हम सब इस वक्त यस तो मेरा राइट। सोसाइटी और कोविड के हिसाब से देखो तो पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो हमारी सब बीमार है बिकॉज हम पे जितनी तबर्रे लगे हुए हैं रिगार्डिंग सोशलाइजेशन, राइट? तो उसके हिसाब से देखो तो इट यस इज वेरी एंड वी डिफिकल्ट. कैन से लाइक हम घर पे बैठ गए हैं, कैद हो गए हैं, तो बीमारी तो आएगी, फिजिकली चेंजेस भी आएंगे, डिप्रेशन भी आएगा, देखिए हर टाइप का डिफरेंट बिल्कुल आएगा बिल्कुल. हमें। तो कोई चीजें नजर आती है, कुछ नजर नहीं आता, तो ना नजर आने वाली भी बीमारी होती है ना. तो हम उस तरह से यस भी मैम बीमार हो सकते. एग्जैक्टली।
सो हेल्थ, अगर हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं तो पहले भी तुम्हारे काफी सेशंस में आई हैव सीन दैट कि people have defined health that it is about physical, mental, and social well-being, right? Not just merely absence of एग्जैक्टली। the disease. So अब लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। अब तुम अगर हम देखें, अगर यहाँ पे सब लोग देखें तो कितने प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं जो हमें वाकई नजर नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल कितनी न्यूज़ेस आती हैं हमारे टीवी के ऊपर मुसलसल कि माँ ने बेटी को छोटी सी थी मार दिया, या अभी कल परसों कोई न्यूज आ रही थी कि वो बीवी ने कहा कि दादा पे इल्जाम लगा दे, वो मार दे। लेकिन अगर आप देखें तो हमारी सोसाइटी बीमार होती जाती है, राइट? सो दीज थिंग्स आर वेरी एग्जैक्टली। सीरियस। हमें अभी तो लगता है यार कैसा हो गया, बुराई बढ़ गई है, जमाना खराब हो गया। एक्चुअली वी आर गेटिंग सिक एंड वी डू नॉट हैव द तो मैम आप आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी? ये बिहेवियर चेंजेस है या फिर साइकोलॉजिकली इश्यूज आ रहे हैं उनकी वजह है, या फिर जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है? जेनेटिक में क्यों आएगी अभी प्रॉब्लम, उस पर काफी टाइम लग जाएगा, राइट? लाइक लेकिन ये मैम जरूर डिप्रेशन में यस मैम, यू कैन। but I know one thing what I feel, right? And the next research which I'll be conducting inshallah taala, and it is in this aspect, इंशाल्लाह। there are a lot of things which you need to work on, right? For example, आपको याद है जब इससे पहले एक चाइल्ड अब्यूज का बहुत बड़ा केस आया था कसूर का, राइट? So there was a call यस for an occupational therapist to come up, right, and get into, but हमारे पास इतने प्रोफेशन है ही नहीं, इतने सारे प्रोफेशनल्स ही नहीं है। Secondly, we do not get an opportunity to work with such scenarios, right? So at that time, it यस was very एग्जैक्टली। necessary to come up actually and to show the potential. ठीक है? अब ये चीजें चेंज क्यों आ रहा है सोसाइटी में, तो तुम देखो इट्स अ लॉन्ग चेन। आई वाज रीडिंग वन ऑफ द रिसर्च एंड इट सेड कि अनकंट्रोल्ड इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी, all right, and sensory even deficit, right, that will bring what, that will bring आगे चल के फ्यूचर में हमारी जितनी जनरेशन है, that the chances of being drug addict, suicidal attempts and यस depression will increase, right? तो बात तो बचपने से ही आ एग्जैक्टली। रही है। यस, इधर अब अगर चेन देखो तो घुमा फिरा के कैसे, द होल सोसाइटी हैज टू बी ट्रेन्ड, द मदर्स आर ट्रेन्ड, सपोज टू बी ट्रेन्ड, द फादर्स आर सपोज टू बी ट्रेन्ड। अब हमारे यहाँ तो सारी की सारी जिम्मेदारी माओ पे डाल देती है कि भाई तुमने संभालना है, ऐसे ही है ना। एग्जैक्टली मैम, और एग्जैक्टली। यस, विच इज अगेन रॉन्ग। अगर देखा जाए तो बाप अपने, हमारे हदीस में तो यही आता है ना कि जो सबसे बेहतरीन चीज बाप देता है अपनी औलाद को वो तरबियत है ना। तो फिर इसका मतलब ये कि इट्स अ एग्जैक्टली। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बोथ हैव टू वर्क फॉर दैट। लेकिन हमारी सोसाइटी बड़े अजीब तरीके से ग्रो कर रही है। वी नीड टू चेंज थिंग्स, वी नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। और अब ये कब होगा, ये तब होगा जब हम कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन पे फोकस करेंगे, इवन देन वी कैन एक्चुअली वर्क फॉर दैट। सो हेल्थ एंड वेलनेस की हम एग्जैक्टली। बात करते हैं so health will cover all these aspects, whereas wellness is when a people will be ready, right, to opt for better राइट। health, quality of life। तो वो कैसे रेडी होंगे? यहाँ तो किसी को क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता ही नहीं है। people don't know what is quality। आई थिंक यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ का मीनिंग हो शायद कि खाना खाना, सोना, एंड जो ड्यूटी है, ड्यूटी हम जिसको कहें, स्टूडेंट की ड्यूटी है पढ़ना, पेरेंट्स की ड्यूटी है कमा कर लाना, वो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ समझा जाता है, बट दैट्स नॉट द थिंग। आई डोंट थिंक सो कि इस हद तक भी हम सोचते हैं। देखो हमारे यहाँ अक्सर जो लोग बीमार होते हैं, मैंने व्हाइल वर्किंग इन अ हॉस्पिटल सेटअप आई हैव सीन कि गन शॉट के पेशेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। जब वो डिस्चार्ज होते हैं, ब्रेन इंजरी के पेशेंट होते हैं, वो चले जाते हैं, उनके पास कोई फंक्शनल कैपेबिलिटी नहीं होती है और घर वाले खिदमत करते रहते हैं। उनको लगता है क्वांटिटी ऑफ एग्जैक्टली। लाइफ अगर बड़ी है, लंबी उम्र है, ठीक है ना, सो दैट इज वंडरफुल, ओके, और वही क्वालिटी ऑफ लाइफ है। बट वी से दिस कि आप जितने दिन जिए आप उन्हें जिए, राइट? तो अब 5 साल बाद एक राइट। बंदी आती है, वो कहती है भाई मेरा तो 5 साल बाद मुझे गन शॉट हुआ था ब्रेन में और सर्जरी तो हो गई, लेकिन मैंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया, घर पे बैठी रहती, हमें रेकमेंड हुई 5 साल बाद, राइट, कि अब जो है ना आप इसे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग सिखा। एंड आई वाज लाइक अब, बट बहरहाल कोशिश करते हैं। अब यू सी इट टुक वन, हाँ, it took 1 week and that girl actually learned one hand training। उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, बट कोई तो होगा ना जो बताएगा बेटा। so nobody told it। so wellness यस फिर उसके अंदर कहाँ से आई कि अच्छा when I can do this so I can do many other thing, right? तो wellness यहाँ से आना शुरू होती है। I'm sorry, ओके मैम, कुछ गला खराब है इट्स ओके तो मैम, हम्म। इट्स ओके, इट्स ओके। तो मैम आप डिफाइन कर सकती हैं, लाइक कुछ बता सकती हैं कि अभी आपने बोला कि हम सोसाइटी में लाइफ, क्वालिटी लाइफ कैसे लाते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में, तो यही कहूँ
कहूंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही लाते हैं क्वालिटी लाइफ इंसान की लाइफ में, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो हमारे यहाँ तो अवेयरनेस भी नहीं है। हाँ, तो अवेयरनेस हमारे क्या आएगी, आई सजेशन देंगी इस तरह पे? इट इज अ वेरी इजी सोल्यूशन। सिंस लास्ट 20 years आई एम इनटू द प्रोफेशन, और मैं बड़े आराम से ये बात कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। माशाल्लाह। तो 20 साल से मैंने क्या किया, यस मैम, एग्जैक्टली। मैंने क्या किया, द थिंग इज दिस, जितनी अपने हिसाब से हो सके कि उससे ज्यादा भी कोशिश करें। आज आप लोग कर रहे थे लाइव शो, सब चीजें, मीडिया बहुत स्मार्ट हो गया है, देयर न्यू पीपल हु आर कमिंग, सो अवेयरनेस यस इज मैम। कमिंग। बट अवेयरनेस आनी कहाँ से है, किस जगह से आनी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और ये मैं बताऊं आपको कि यस। if अगर आप ये कहें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज ही क्वालिटी ऑफ लाइफ लाता है, तो बेटा देखो, देयर इज अ शिफ्ट इन अ मेडिकल प्रैक्टिस नाउ फ्रॉम मनी टू वैल्यू, राइट, टू क्वालिटी ट्रीटमेंट, ओके। सो ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क ऑन इट, और इसमें इट्स नॉट अ वन मैन शो, इट इज अ कंबाइंड वर्क। अगर कोई यस डॉक्टर एग्जैक्टली। अगर कोई डॉक्टर रेकमेंड नहीं करता है, ठीक है ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो रेफर नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, राइट। नंबर वन। नंबर एग्जैक्टली टू इज दिस, एग्जैक्टली। हमें अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं, ठीक है। और उस पहचान के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट डोंट हैव टू टेल पीपल के हमारा एक रोल है या अवेयरनेस करनी होगी। हमें एक्चुअली अपनी नॉलेज पे अबूर हासिल करना होगा, तभी अवेयरनेस आती है, एग्जैक्ट। ठीक है। जब तक आप यस कॉन्फिडेंट मैम। नहीं होंगे, तब तक तो आप नहीं कर सकते। अब यू टेल मी वन थिंग, अगर मैं आप लोगों से बहुत छोटी छोटी बातें अपने स्टूडेंट से भी पूछती हूँ अक्सर, कि मुझे बताइए कि सारा वेस्टर्न कल्चर उठा के अपनी किताबों से और अपने प्रोफेशन में लगा के यहाँ पढ़ लेते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू अस एक्चुअली वर्क फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी? बात को यस समझ मैम। के अपने तरीके से अप्लाई करते हैं, नहीं करते। हमें अगर अपनी नॉलेज में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो फिर हम लोगों को अपनी अवेयरनेस नहीं दे सकते। लगे बंदे एक ही काम अगर करते रहेंगे, तो फिर बस वही करते रहेंगे और बोलते रहेंगे हम ओटी हैं, हम ये करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। यू नीड टू एग्जैक्टली। कम अप, यू हैव टू तो डू मैम यू रिसर्च। नीड टू से जो हम पढ़ते हैं हमें उसे इम्प्लीमेंट भी करना है, तो तब भी अवेयरनेस का एक स्टेप हम और आगे जाएंगे। हाँ, हम जो पढ़ते हैं हमें उसे इम्प्लीमेंट भी करना है, और हम जो पढ़ रहे हैं, आया वो आज के दौर के हिसाब से भी है, नहीं है, ये बात बहुत जरूरी है। हाँ, मीन्स अब अपग्रेड करना है हमको, हर चीज को बिल्कुल। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना है। अब जैसे कोविड का किसी ने नहीं सोचा होगा ऐसी सिचुएशन कभी आएगी, अब आ गई सिचुएशन, अभी हमें वही पुरानी चीजें, वही पुरानी फिलोसफीज तो इस पे अप्लाई नहीं करनी, इसके अकॉर्डिंग भी हमें अपग्रेड करना है। बिल्कुल तो करना है। यू कैन। अब अगर, हाँ, अब अगर आप कोविड के हिसाब से बात करती हैं आज के दिन, कि भाई हम हेल्थ एंड वेलनेस के हिसाब से बात करते हैं, तो व्हाट इज आवर रोल फॉर कोविड? आई मीन यू ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लुक इनटू इट कि हमारा रोल क्या होगा। लेट मी टेल यू कि जब एक बार आपको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है, सो उसका रिहैबिलिटेशन टेक्स अ लॉट टाइम, राइट। अब कोई भी शख्स खाना यस खाने एग्जैक्टली। में, कोई भी शख्स अपने कपड़े बदलने में, अपनी बेसिक एडीएल सर्वाइवल एक्टिविटीज जो हैं वो करने में ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा होता है, राइट। तो अब वो जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा होता है, उसका रेट क्या है? अब उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन होती कितनी है उसे यही नहीं पता, ठीक है ना। चलो ये तो पता है, लेकिन हर एक्टिविटी कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है, और वो बार बार ऑक्सीजन डेप्थ में जा रहा है, तो फिर ही नीड्स टू बी गाइडेड फॉर दैट ना। और ये हर एक का प्लान अलग होगा, यस क्योंकि हर एक डिफरेंट तरीके से खाना खाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ खाना खाएगा, डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनता होगा, उठना बैठना डिफरेंट तरीके से होगा। सो अब कोविड के हिसाब से देखिए, देयर इज अ वंडरफुल रोल, एंड देयर आर इंटरनेशनल गाइडलाइंस एंड वी हैव प्रोफेशनल्स आर वर्किंग। सो अगर किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को लगता है कि उसका बहुत रोल है और वो करता है, तो उसके पास नॉलेज भी होनी चाहिए ना, एविडेंस भी होना चाहिए, गाइड भी होनी चाहिए, रिसर्च पेपर भी एग्जैक्टली। पढ़ने चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा? जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, जब तक हम ऊपर सतह पे आके लोगों को बताएंगे नहीं कि हम क्या करते हैं। देखो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, always remember this. You need to वर्ड। show यस from मैम। your performance, यस। you need to show from your work that yes, we can do this. यस एग्जैक्टली, वी कैन डू दिस। ओके मैम। सो और आप क्या डिस्कस करेंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को ही हम जस्ट देख लें, पाकिस्तान में लोग इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, इवन फिजियोथेरेपिस्ट को भी नहीं देते, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की तो अभी अवेयरनेस भी नहीं है। तो इससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगी कि आपकी लाइफ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी एज अ वेल बींग आपको कैसे चेंज कर सकता है, आप में कितनी चेंजेस ला सकता है, इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा?
अच्छा, अगर लाइक अवेयरनेस की हम हम बात करते नो हैं पाकिस्तान में, तो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान बेटा, ग्लोबली ये एक डिलेमा है। नो, देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, बट हमारे हालात कुछ ज्यादा बुरे हैं। यस वरना वरना ये कि मेजर यस मैम सिटीज में एग्जैक्टली लाइक दैट्स व्हाई आई कराची की मेंट बात करते हैं, तो मेजर सिटीज में तो पीपल नो, बट अगर आप, लेकिन कराची इज नॉट द होल पाकिस्तान, है ना। लाहौर इज नॉट द होल पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा इज नॉट द होल पाकिस्तान। यस बलोचिस्तान की बात करते हैं, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई गेस। वहां पे क्या वहां आबादी नहीं होगी? क्या वहां क्वालिटी लिविंग की बात नहीं हो रही होगी? सब कुछ होगा, बट नहीं, दे आर यस नो मैम पीपल, राइट। सो जरूरत तो सब जगह है, राइट। यस और अवेयरनेस की जहाँ बात आती है, तो दुनिया में सारा यही फिनोमिना है। और यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं पता है या इनको नहीं पता है, तो भाई देखिए, आपको कौन बताएगा? फिर आपको जाके बताएंगे ना, मैं मरियम एहतेशाम, मारिया एहतेशाम, राइट। आप ऐसे कौन से यस सुहाग के पढ़ेंगे कि कोई बोले आओ भाई कहाँ है, ढूंढो मारिया एहतेशाम को। अगर कोई काम मारिया एहतेशाम ने ऐसा किया होगा, तो लोग कहेंगे ढूंढो मारिया एहतेशाम को। लेकिन अगर कोई काम नीलम ने ऐसा किया ही एग्जैक्टली नहीं है, तो कौन ढूंढेगा मुझे? आई नीड टू बी लाउड अबाउट, मैंने कहा ना आपसे, एग्जैक्टली हर चीज है काम। अगर नीलम कोई काम करेगी, काम तो ही लोग नीलम को जानेंगे। अगर नीलम काम नहीं करेगी, खाली जबानी खर्च करेगी, खाली बातें करेगी, तो लोग नीलम को नहीं जानेंगे, राइट। प्रोमिसेस, कमिटमेंट, एग्जैक्टली आपकी प्रोफेक्शन से डिवोशन, ऑल दीज थिंग्स। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इंडिविजुअल है, राइट, वी हैव फैमिलीज एंड एवरीथिंग। बहरहाल, इफ वी टॉक राइट अबाउट हेल्थ wellness, so there is a long chain of work that we can do, right, starting from राइट educating community, mother community, educating the father community, educating the children community regarding their problems, how to solve their problems, nurturing them, educating old people regarding maintenance of their health, and getting into the society with their limited functional capacity, and educating the workers कि वो अपने काम पे किस तरह का काम करें, और कि उन्हें किसी किस्म की डिजीज ना हो, आगे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हो, डिसेबिलिटी नहीं हो, राइट। एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी लॉन्ग चेन, बहुत सारा काम है हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर जो हम सब कर सकते हैं। और दिस इज वेयर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, स्पेशली डॉक्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, इस तरह के कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं, जिसपे आप सीखते हैं सारी चीजें। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पढ़ाई जाती है आपको, आपको अप्लाइड जीरियाट्रिक पढ़ाई जाती है, मेनी अदर थिंग्स लाइक दीज। असिस्टिव डिवाइसेस ले लीजिए, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं हम पढ़ते हैं ना। हम तो सिंपली उनको या तो अपने यस एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, या तो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं उनको, या हम कहीं से देख लेते हैं। लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं है। बायो एग्जैक्टली इंजीनियरिंग और रिहैब प्रोफेशनल्स, दे मिक्स टुगेदर एंड दे वर्क टुगेदर, राइट। लेकिन हमारे यहाँ कितने थेरेपिस्ट हैं जो एक्चुअली बायो इंजीनियर्स के साथ काम करते हैं? वेरी फ्यू ऑफ देम, राइट। एग्जैक्टली सो there is a lot need of collaboration among the professions. There is a lot need of professionals to put in their knowledge put it in to the promote health and knowledge yes the community. यस मैम मैम एक चीज़ और मुझे मेंशन करनी थी कि यूथ हमारी जो है आप देख सकती हैं कि हमारी यूथ जो है वो बहुत लाइक चेंज होती जा रही है उसका बिहेवियर भी चेंज होता जा रहा है हर चीज़ से रिलेटेड अभी हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हम छोटी सी कोई ऐप देख लें टिकटॉक जिसे आजकल लोग कहते हैं पबजी देख लें इस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट उनका बढ़ गया है ये भी तो माइंड लाइक हेल्थ से रिलेटेड उनको खराब कर रही हैं तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ये जो लाइफ में हम चेंजेस ला रहे हैं हमारी यूथ चेंजेस ला रही है तो इसका क्या असर होता है हेल्थ पे भाई असर तो सभी को पता है, इसका बहुत बुरा होता है। अब मैं क्या नया यस बोलूंगी इसके मैम अंदर, एग्जैक्टली राइट। ये इसमें तो कोई नई लेकिन बात मैम मैं चाहती हूँ हम आप खुद ही पहले प्रोफेशन है अपने तो घरों में, प्रोफेशनल पे हाँ हाँ हाँ, हम खुद ही अपने घरों में पहले की चीजें लेकर आते हैं, राइट, और फिर खुद ही सर पकड़ यस के बैठ जाते एग्जैक्टली हैं कि हमने क्या कर दिया है। ऐसे ही है ना। तो यस हाँ मैम बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसका असर कितना है, स्क्रीन टाइम का असर कितना है, इस किस्म के गेम्स का कितना है, ये तो हमेशा से है। आप अच्छी सोबत में बैठते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, राइट। अब पुराने यस जमाने में सोबतें हुआ करती थी, पुराने जमाने में अच्छे किस्म की गेट टुगेदर्स हुआ करती थी। लेकिन अब जो है वो गेम्स होते हैं, आपकी सोशल कॉन्टेक्ट ज्यादा होते हैं, उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो जब आप यस किसी भी एग्जैक्टली चीज को हद से ज्यादा तजावज कर देते हैं, तो उसके असर तो मेंटल हेल्थ पे आते हैं। और जितने बुरे आते हैं कि हम फिर सोच नहीं सकते, पूरी की पूरी पर्सनालिटीज डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, आपका फोकस फ्रॉम योर इंटरेस्ट ऑफ वर्क एवरीथिंग डिस्टर्ब, एंड यू डू नॉट बिकम अ गुड परफॉर्मर। फिर सेकेंडली, लाइफ इज नॉट अबाउट वर्चुअल गेम्स। एग्जैक्ट ये जितनी कत्लो गारत हो रही है, चीजें यस हो रही हैं, एग्जैक्टली असल में हम उस जनरेशन से हैं और उस फैमिली से हैं
कि जहाँ पे अगर हथियार देखो तो वहीं पे ही दिल बैठ जाए, ठीक है। लेकिन जो आज की एग्जैक्टली। जनरेशन है और जो लोगों की रसाई है इन चीजों के लिए बहुत आसान है। हमें याद है जब हम लोग पहली बार हमारे जमाने में होती थी एनसीसी ट्रेनिंग, तो हम लोग उसके लिए गए, तो वो आपको फायरिंग सिखाते हैं, ठीक है ना। नेशनल कैडेट ट्रेनिंग होती है, कोर्स होता है, तो उसके 20% मार्क्स भी होते थे या 2% कह लो वट एवर। तो हमें वो करनी थी। अब उस दिन गन शॉट का सेशन था, हमने हिम्मत करके चले तो गए भाई, चले जाएंगे, लेकिन यकीन करो गन हाथ में पकड़ने से, राइट, शूट करने तक लेके, एंड आई वाज लाइक शेकिंग कि ये क्या चीज है, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। राइट। लेकिन अब जब हर वक्त आप गन देखते हैं हाथ के अंदर, ठीक है ना, तो आप क्या हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। हर वक्त गन कैसे आती है, वर्चुअली आती है। हिश टिश बच्चों को सिखा रहे होते हैं, ये देखो आओ खेलें, आओ ये करें, भाई इसी जगह आप तीर कमान निकाल लो, फोकस बढ़ेगा, राइट। What Jews हम्म। do, very famous, that they teach their children horse riding, they teach their children this archery, right? And it's not that difficult. हम बोले भाई ये नवाबों के खेल हैं सारे, वो कर सकते हैं, हम नहीं, अरे भाई इतने बो एंड एरो गेम्स मिलते हैं, आप घर में लाइए, सिखाइए, फोकस बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी और पेशेंस बढ़ेगा, एंड इसके अंदर आपको वो नहीं नजर आता इतना, क्या बोलते हैं उसे, तशद्दुद नजर नहीं आता, राइट। Whereas when you talk about these PUBG राइट। type of cricket, देखो पर्सनली तो मैंने कभी खेले नहीं है, सुने ही है, खाली एक आधा लोगों को शायद देख भी लिया होगा। तो मैंने यही देखा है कि उनके लिए हर चीज यही है, उठाओ मार दो, उठाओ मार दो। सो दे हैव इट लाइक हर बात तो में मैम हल इस ही है। तरह पेशेंस कम हो जाता है, पेशेंस बंदे में कम हो जाता है, हाइपर टेंसिव हो जाता है बंदे में। लाइक इस तरह साइकोलॉजिकली इश्यूज भी बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, और फिर डिसेंसिटाइज भी तो हो जाते हैं ना। अब देखो किसी को मरा हुआ देखना आसान काम है। यस। आज भी सड़क पे कोई बिल्ली गाड़ी के नीचे आ जाए किसी के, और अगर आप पड़ी हुई देख ले, तो आपके अंदर से एक झुरझुरी आ जाती है ना, ये तो हमारा और आपका है। यस। लेकिन हर एक को नहीं आती है, क्योंकि जब रोजाना आप टीवी पे मार रहे होते हैं लोगों को तो क्यों आएगी। सो दे आर गेटिंग desensitized टुवर्ड ऑल दीज एक्ट्स। वी नीड टू लुक इनटू इट यस एंड वी मैम। मस्ट बी फोकस कि हम अपने बच्चों को प्रमोट करें। और अपने अडल्ट में भी अगर कोई ऐसे गेम्स हैं तो उनकी एक लिमिटेशन रखें, वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए। व्हाई किलिंग, इतनी ब्यूटीफुल क्रिएचर ह्यूमन बीइंग बनाई है, ये मैम। मारपीट। यस मैम, एग्जैक्टली। सो और इससे तो सिर्फ जो खेल रहा है उस पर भी असर नहीं होगा, उसके इर्द गिर्द बाकी इन्वायरमेंट में भी काफी असर होता है। फॉर एग्जाम्पल अग्री। कोई खेल रहा है तो सिर्फ यही गेम नहीं, इस तरह की और भी गेम्स भी होती है, उसका वो जो आवाज होती है, वो शोर, तो वो साइड वालों पर भी बुरा असर कर रहा होता है। तो इस तरह भी हम देख सकते हैं कि हेल्थ पे काफी बुरा असर आ रहा होता है। so मैम, यू वर सेइंग समथिंग? नहीं मैं तो कुछ नहीं कह रही, आप कह रही हैं और अब आप मुझे नहीं, मुझे क्वेश्चन भी लगा आप कुछ कहने वाली हैं। नहीं नहीं, एंड इफ यू हैव मोर मुझे लगा आप कुछ कहने वाली। यस मैम, हम जो है तो अभी जरा कमेंट्स की तरफ चलते हैं, कमेंट्स को भी देखते हैं, वहाँ भी शायद कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास। सबसे पहले तो मैम आपको सलाम किया गया है, मिसबा सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ किसी ने क्वेश्चन किया है, what is the topic of today's conversation? So basically तो टॉपिक है occupational therapy for health and well-being across the lifespan। ये हमारा टॉपिक था कि लाइफ स्पैन ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी हेल्थ के लिए कैसे इंपॉर्टेंस रखती है। वो तो हमने अभी डिस्कस भी कर लिया। मैम ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से देकर समझाया, बहुत आसान जुबान में, नॉर्मल ले मैन भी इसको समझ सकता है। मैम फिर आपकी, ओके, व्हाट मैम, यहाँ पर एक क्वेश्चन है अयान खान की तरफ से, दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? हाँ ओके, तो हमने डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल हेल्थ तो डेफिनेशन डिस्कस ऑफ। कर ली है, हमने एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ तो डिस्कस कर ली है। एंड दिस इज बाय अयान, आई गेस अयान मैं काफी क्लियर हूँ इसके लिए। बट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ ओटी ही ले सकता है या एसएलपी भी और डीपीटी भी। बेटा मैंने पहले ही कहा है कि वी ऑल वर्क टुगेदर। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ की डेफिनेशन ये है कि व्हेन यू आर लिविंग यू शुड बी लिविंग एंड एंजॉयिंग इट। दैट कुड बी, आप किसी को अगर कोई ऐसा मसला है ही नहीं कि जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फिजियोथेरेपी उसका काम करेगी। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लाइक मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ स्टेटस, दैट इज अ quality of life. And when you talk about quality of life, then definitely you talk about physical, mental and social, all health, ठीक है ना, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। तो इसमें डीपीटी भी काम करता है बेटा। देयर आर फिजियोथेरेपिस्ट, देयर आर स्पीच थेरेपिस्ट, देयर आर साइकोथेरेपिस्ट, मेनी अदर पीपल हु आर वर्किंग। सो आई गेस आई एम क्लियर टू यू।
अच्छा मैम भैया, आयान साहब के और भी क्वेश्चंस हैं. दैट इज, if you're in occupational therapy, what will you prefer for youth? If someone takes a suggestion, and why will you say? यार बेटा, आप अगर occupational therapist ही हैं, या जो भी occupational therapist यहाँ पे नए लोग हैं, सब हैं, वो सुन रहे हैं, so I believe in it के focus on your education first. देखो, थर्ड ईयर तक जो है ना, you are a student of occupational therapy. थर्ड ईयर के से आप क्लिनिक शुरू करते हो, तो आप क्लिनिक्स में आना शुरू करते हो. बट आई टेल यू वन थिंग, एवरीबडी इज नॉट अ क्लिनिशियन. ये बात हमेशा याद रखिएगा. आप में से कुछ हो सकता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी बिजनेस करे, लाइक रिहैब शॉप्स एंड ऑल दैट. कुछ हो सकता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी को प्रमोट करने के लिए काम करे, ठीक है ना. कुछ रिसर्चर्स हो और कुछ एकेडमिक्स में आए. तो ऑलवेज लुक इनटू योर स्किल्स, वेयर यू कैन वर्क. एंड थर्ड ईयर तक आप फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, अपनी फाउंडेशन पे. दैट इज वेरी मच नीडेड. दैट इज द रीजन आई एम सजेस्टिंग यू. क्योंकि जब तक आप अपनी नॉलेज में स्ट्रांग नहीं होंगे ना बेटा, तो आए बाय शाये करते रहेंगे, लोगों को बता नहीं सकेंगे कभी कि आप क्या हैं. राइट? आपका काम बोल नहीं पाएगा. अपने काम को अगर बुलवाना है, तो बेहतर ये है कि आप पढ़ें और नॉलेज को स्ट्रांग करें. अच्छा भाई, ओटी और पीटी का डिफरेंस आपको कभी समझ नहीं आ रहा होता. अयान को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. यस मैम. हाँ, कोई बात नहीं. अयान बेटा, ओटी और पीटी का डिफरेंस तो पहले भी बता चुके हैं. मेरे ख्याल उसामा था कि उस्मान साहब थे जिनका मैंने सेशन अटेंड किया, तो उसने कहा था, यू टॉक अबाउट फिजिकल फिजियोथेरेपी, टॉक अबाउट द फिजिकल एक्टिविटीज मोर एंड फिजिकल फंक्शन, वेयर एज वी टॉक अबाउट द होल लाइफ फंक्शन. राइट? अब उस लाइफ फंक्शन में चाहे बच्चे को अपने दूध की बोतल पकड़नी हो, या अपने माँ के साथ इमोशन करने हो, शेयर करने हो, या उसके अंदर किसी बुरे आदमी को अपने काम करने हो, उसकी अगर किसी वजह से, डायबिटीज की वजह से, ओल्ड एज की वजह से सेंसेशन लॉस हो रही है, तो सेंसरी री एजुकेशन करनी हो, ये सारे काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ आते हैं. या फिजिकल हो, या मेंटल हो, या उसकी सोशल लाइफ हो के इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है. अब दिस इज द डिफरेंस. व्हेन यू एक्चुअली वर्क, देन यू गेट टू नो. अदर कंट्रीज जिसकी आप बात कर रहे हैं बेटा, वो वेलफेयर कंट्रीज हैं, जो अपने मुल्क का और अपने मुल्क के लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं. तो दिस इज हाउ इट गोज. इसीलिए वहां पे जो है इन प्रोफेशंस की डिमांड ज्यादा है. और मैंने आपको पहले ही बताया, उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ रियली मीन्स के हेल्थ में फिजिकल, मेंटल, सोशल सब चीजें अच्छी हूँ. राइट? वेयर एज हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये है, भाई तू जैसा भी है सामने बस बैठा रहे मेरे, चाहे चल फिर ना जाए, हम मेड रख लेंगे, आपके कपड़े बदला देगी, हम कोई खाना खिला देगा, कोई ये कर देगा. हमारे लिए ये क्वालिटी ऑफ लाइफ हरगिज नहीं है कि हमारा जो मरीज है वो अपने काम सारे खुद कर ले, वो खुद से एंजॉय करे लाइफ को. जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी. अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा ख्याल है. और भी है? साथ में कुछ बोला है शायद. नो नो मैम. Yes, I agree with you, Zinat. There is a lot of areas that we need to work on, और जो अभी तक हमारे मुल्क के अंदर एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, and we can actually explore them. और इसके लिए मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही है मारिया, और शायद शो में अब सिर्फ मैं ही रह गई हूँ. एनी टाइम है. मैम, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, बिल्कुल. Welcome back to the show. So I am hosting it now, and you are the guest. ओके मैम, ने आपको थैंक बोला है. आपने जो क्वेश्चन को आंसर किया है इस हियर. Well, ma'am, thank you so much for your answers, and thank you, Mariam, too. Actually, I'm Maria Ehtisham, and thank you, ma'am, Anytime. होलिस्टिक को अपना टाइम देने के लिए, हमारे इतना स्पेशल टाइम बनाने के लिए. लाइक हमने सोचा था कि शायद इससे भी अच्छा हो जाएगा, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम नहीं हो सका. उसके लिए हम आपको सॉरी करते हैं कि हमसे वो जो हमारा सेशन होना था वो प्रॉब्लम हुई थी. नहीं, you don't. And thank you so much, holistic. Thank you so much. And holistic Anytime. होलिस्टिक की तरफ से मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमें इतना टाइम दिया, इतने हमें सपोर्ट की, और हमारी अवेयरनेस कैंपेन को आगे लेकर चले. और इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जैसे कि हम सब मिलकर साथ कर रहे हैं. तो इस तरह इंशाल्लाह बहुत अच्छा इम्पैक्ट
राइट है, जैसे कि मैम आपने बोला कि हमें करना है, जब तक हम करेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू टेक द हाँ, नेक्स्ट लेकिन स्टेप। बताने के तो लिए इंशाल्लाह। remember one thing, हाँ, उस बताने के लिए आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी नॉलेज में उबूर हासिल करना है, और वो तभी मुमकिन है जब आप लोग अच्छा एग्जैक्टली। दिल लगा के सीखेंगे और पढ़ेंगे। रीड रिसर्च पेपर्स। श्योर मैम, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। थैंक यू मैम। और मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, it was a lovely time with you all, and it was wonderful, I guess. यस मैम, Take थैंक यू care. सो मच एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz. Allah Hafiz.